ये बता अभी तो टाइम है ना। हैं चने दे दो। दे दिया। ये एंटीवायरस का क्या कर दे, ओके लिख दें? क्यों? मुन्नू, मुन्नू, ये ओके लिख दें क्या, क्या लिख दें? क्या ओके लिखें? ये एंटीवायरस रिन्यू लिखें? देखो क्या लिखें, ओके। कहाँ से क्या
बंद कर देना गेट। Hello guys, how are you? Question is given based on collision. Consider collision of two billiards ball with equal mass m1 and m2. First ball is targeting and second ball is target. Target ball at rest and targeting ball hits at target with the speed of 30 meter per second and gets deflected from initial direction through an angle of 37 degree. What is the speed of second ball after collision? First, remember that the collision between the billiards ball is assumed to be perfectly elastic. Clear? First thing, remember. And you know, when the masses are same, the momentum, the velocities along the line of impact get transferred. These are the two concepts. That is very important. And you know, first ball is moving after collision at 37 degree with its initial direction, means collision is oblique. Collision is oblique. So look, I am telling the initial situation and then the final situation. Suppose this is the ball which is moving already. That is moving with a speed of 30 meter per second. 30 meter per second. This ball is moving with a speed of 30 meter per second and collides with the other ball which is at rest. So 30 meter per second. And second ball is at rest. Always remember, if the collision is perfectly elastic and the second ball is at rest, and this is the second ball. So what is actually happening? Look, this ball suppose B and this ball suppose A. And after collision, this ball and this ball is identical. And ball A after collision, this ball A after collision moving with the speed of 30, with the speed at an angle 37 degree, and second ball will move at an angle of 53 degree, because after collision the collision is perfectly elastic. These two balls will move perpendicular. So suppose this, and this is the line of impact, means before collision this ball A is colliding like this.
is colliding like this. Means the center, this ball B, look, this ball B and this ball A. Ball A initially was moving with the speed of 30 meter per second, and the ball A after collision moving with the speed of at an angle of 37 degree. You know what is the momentum of this ball before collision in this direction? Look very carefully. This is very important concept. The momentum of this ball along this direction is, and along this direction is this line of impact, and this is the tangential line. This momentum will not change. So this angle is 37 degree. Therefore, momentum along this line 37 degree. So this momentum will be 30. The velocity here is 30 cos 37. Yani after collision, this velocity will not change. And this is the velocity along the line of impact that will transfer to ball B. That is cos 37 means 4 by 5. 4 by 5 means this is 24 meter per second. The ball A will move with the speed of 24 meter per second. And here the velocity is 30 sine 37. So sine 37 is the velocity of A before collision along the line of impact. This is the line of impact, and this velocity will totally transfer to ball B. So sine 37 is 3 by 5. 3 by 5. 5 6 ja 30. So 15 meter per second. 15 meter per second. So this velocity will transfer to ball B because this is along the line of impact. Sine 37 is 3 by 5. 18 meter per second. Sorry, 15 18. 3 by 5. That is 18 meter per second. So this velocity of ball B after the collision will be 18 meter per second, and this velocity of ball A after collision will be 24 meter per second. So ball B will move with a speed of 18 meter per second, means second option is correct. Just remember, if the collision is perfectly elastic and the masses are same, the velocities gets interchanged along the line of impact, and this is the line of impact. This is the line of impact with B, and after collision their direction will be mutually perpendicular. Very important concept, you should remember this. Thank you very much, and do such type of problems very carefully on the concept. Thank you.
हेलो, आवाज आ रही है? उसने ज्वाइन नहीं करा। अच्छा, एक होता है ना रिजल्ट, वो अनसर्टेनिटी। आपका था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच एच बार। एच बार, हाँ एच बार एच बार 4 पाई। ये तो लिखो एच बाई 4 पहले को, एच बार लिखो, एक ही बात होती है। अच्छा, तुम जा रहे लेटे जाएगा। डेल्टा पी डेल्टा एच, तो डेल्टा पी का मतलब मास इंटू पैन डेल्टा पी हो जाता है। सवाल आया। देखो जी, है नहीं ज्यादा करते, आ जाए तो बता देना। ये है आगे तो ले लो लेंगे। मास दिया है नहीं, सॉरी ये नहीं तो हो गया है जो सॉल्व न्यू डॉट तो आ चुका नहीं ये है देखो अपडेट हो गया। क्या कैसे? हाँ, हेलो वैष्णवी, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना है, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। क्यों तुम लोगों ने क्या, एक क्वेश्चन है। चलो, हेलो, कल अपना कितना हुआ था? कल अपना कितना हुआ था? सर वो ही वर्जन वगैरह ये सब बता दिया। मैंने बताया था तुम्हें कि अगर मान लो किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाए और कैपेसिटर पहले से चार्ज हो, है ना? हाँ सर। एक तो वो कंडीशन है कि जब बिल्कुल चार्ज नहीं है तो बैटरी के बराबर उसका पोटेंशियल हो जाएगा, है ना? हेलो, हाँ सर। तुम बोलते रहा करो क्योंकि तुम अकेली हो ना, अकेली हाँ पढ़ रही सर। हो ना, इसलिए तो मुझे मालूम होना चाहिए तुम सुन रही हो। तो एक तो मैंने केस वो बताया था कि हाँ कैपेसिटर पे सर। बिल्कुल चार्ज नहीं है और आपने किसी बैटरी से जोड़ा, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो फाइनली हो जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज बैटरी ही देगी, समझ गए? तो पूरा का पूरा हाँ चार्ज सर। बैटरी ही देगी। मान लो कैपेसिटर पे पहले से चार्ज है लेकिन उसका जो वोल्टेज है बैटरी से कम है, तो उसको और चार्ज की जरूरत है उसी वोल्टेज तक आने के लिए, तो बैटरी कुछ चार्ज सप्लाई करेगी, है ना? हेलो, हाँ सर। तीसरे केस में मान लो चार्ज हाँ ज्यादा है, सर। यानी यानी कैपेसिटर पे वोल्टेज ऑलरेडी ज्यादा है और उसको बैटरी से जोड़ेंगे हम, तो ये उल्टा कैपेसिटर से बैटरी में चार्ज आएगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल जो होता है, ध्यान रखना, वो हमेशा बैटरी के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? सर। तो मेजर कंसेप्ट इसमें क्या है कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लेट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। जितना भी सेल है, जो बैटरी है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनली कैपेसिटर को उसी पर आना है। अगर ज्यादा चार्ज है उस पर तो हाँ चार्ज सर। बैटरी को सप्लाई करके उस पर आ जाएगा, कम चार्ज है तो बैटरी से लेके आ जाएगा। ठीक है? अगर बिल्कुल चार्ज नहीं है तो हाँ। पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर से लेगा। ठीक है? और अगर उतना ही हाँ चार्ज, सर। उतना ही पोटेंशियल जितना बैटरी का है, तो बिल्कुल चार्ज देगा नहीं ना लेगा। ठीक है? हाँ सर। अब मैं जो केस बता रहा हूँ इसमें बहुत सवाल पूछे गए,
अब हमने कहा था कि बैटरी का प्लस टर्मिनल और कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल जोड़ा गया था, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सर। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव जोड़ा जा रहा है, यानी कैपेसिटर पे पहले से चार्ज है। देखो थोड़ा ध्यान देना, मान लीजिए यहां पर ये हमने कैपेसिटर बनाया और ये हमने बैटरी बनाई, और ये हमारी की है। ठीक है, अब सुनो, ये हमारा हाँ सर। कैपेसिटर है और ये हमारी बैटरी है। बैटरी का पॉजिटिव कहाँ है, लेफ्ट में या राइट में? बैटरी का पॉजिटिव राइट में सर। राइट में, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना, इसमें। और ये की है, ये क्या है, की, ठीक है। हाँ सर। अब देखना थोड़ा अच्छी तरह से, अब मैं कहता हूं आपसे कि इस कैपेसिटर की ये प्लस प्लेट है हाँ सर। और ये माइनस है, यानी पहले से चार्ज है, जबकि ये माइनस है और ये प्लस है। इस पर चार्ज Q0 है और इसकी कैपेसिटेंस C0 है, किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। हेलो, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। और बैटरी का वोल्टेज V0 है। अब थोड़ा ध्यान देना, अब अगर C0, अब तुम मान लो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर पे V, क्या वो Q0 अपॉन C0 होगा? हाँ सर होगा। अब मान लो इफ V इज इक्वल टू V0 है, V इज इक्वल टू क्या है, V0। V इक्वल टू V0 का मतलब क्या हुआ कि इसकी प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर है, ठीक है। हाँ सर। तो चार्ज कितना जाएगा? 0। नहीं नहीं नहीं, इसमें तुमने अंतर नहीं देखा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है? हाँ सर। उसमें क्या था पहले वाले केस में, दोनों ये था। दोनों के पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े थे, हाँ यहाँ पर सर। पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़े हैं। समझ में आया, समझ में हाँ आया? सर। तो क्या करेगी ये बैटरी, फाइनल तो फाइनल इस कैपेसिटर को इसी के वोल्टेज के बराबर होना है, यानी ये वाली प्लस होनी है और ये वाली माइनस होनी है। नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। तो पहले ये हो गया। पहले ये बैटरी क्या करेगी, चार्ज देगी, इसको न्यूट्रल करेगी। क्या करेगी इसको, न्यूट्रल करेगी। मतलब पहले इतना चार्ज देगी प्लस Q0 के बराबर, न्यूट्रल होगा, इसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज देगी जिससे कि ये वाला पॉजिटिव हो जाए और ये वाला क्या हो जाए। नेगेटिव। तो T बराबर 0 पर हमने स्विच बंद किया, T बराबर 0 पर हमने क्या किया, ये स्विच बंद बंद कर किया। दी। तो T बराबर 0 पर ये सिचुएशन है, T बराबर 0 पर ये सिचुएशन है। अच्छा, फाइनल सिचुएशन क्या होगी, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें समझना जरूरी है। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। हाँ सर। तुम्हें किताब का कुछ हुई व्यवस्था? नहीं सर, अभी तो मैं HC वर्मा से ऑनलाइन कर ऑनलाइन हैं, क्या कह रही हो? HC वर्मा से ही कर लिया अभी तो। हाँ, वैसे एससी वर्मा बहुत बढ़िया बुक है, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है हाँ तुम, सर। लेकिन फिर भी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना मेन, वो तो मैं भेजूंगा अभी, हाँ हर सर। शीट के दूंगा मैं क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सर। हर शीट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारा क्या है, ये कैपेसिटर था भाई, और तुम्हारी ये बैटरी थी कि नहीं थी? हाँ सर। अब तुम खुद ही बोलोगी, मैं नहीं बोलूंगा इसमें। अब तुम ये बताओ कि ये तुम्हारी बैटरी है
और ये कैपेसिटर है, इसका फाइनल कौन सा, ये बैटरी का जो पॉजिटिव होता है ना, हाँ सर। फाइनली कैपेसिटर का भी यही पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हाँ नेगेटिव सर। होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना था बैटरी का, वी नॉट। वी नॉट। यहाँ पर भी कितना होगा बताओ, यहाँ वी पर नॉट। भी वी नॉट होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाँ भी वी नॉट हो जाएगा। ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हो गया, क्या हो गया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ब्लॉक टाइम। तो ये वाला चार्ज अब वी नॉट पोटेंशियल होना है, तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू नॉट, क्यू नॉट। और इस पर कितना है माइनस क्यू नॉट। क्यों भाई, इस पर कितना माइनस था, क्यू नॉट। इस पर माइनस क्यू नॉट था माइनस ना, क्यू नॉट। ठीक है ना। हाँ हेलो, सर। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ समझ रही हो ना बात को। हाँ सर। तो फाइनल पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर का वो बैटरी के बराबर होगा, लेकिन प्लस से प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, माइनस से प्लस था। अगर मैं प्लस से प्लस जोड़ता ना तो कोई चार्ज सप्लाई नहीं होता, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ, क्या बैटरी ने चार्ज दिया है, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, इस पर फाइनल चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव क्यू नॉट हो गया ना। पॉजिटिव। पहले कितना था, नेगेटिव। तो कितना चार्ज दिया बैटरी ने बताओ, बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं तुमसे, कितना चार्ज बैटरी ने दिया। और नेगेटिव क्यू नॉट। नहीं यार, फाइनल चार्ज कितना है इस पे, प्लस क्यू नॉट है ना। हाँ सर। और पहले चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज माइनस क्यू माइनस नॉट। क्यू नॉट। तो इतना डिफरेंस आया ना चार्ज में, हाँ सर। नहीं आया समझ में। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, आ गया सर। और इनिशियल चार्ज कितना था, माइनस क्यू नॉट। तो कितना आएगा ये, टू क्यू नॉट आएगा ना। हाँ सर। कितना आएगा ये, टू क्यू नॉट। ये किसने दिया चार्ज, बैटरी ने। कितना दिया, बैटरी किसने में। दिया है, बैटरी ने। समझ बैटरी में आ में। रहा है कि नहीं आ रहा, आ आ रहा है रहा है कि सर। नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, इस वाले कैपेसिटर पे पहले एनर्जी थी कि नहीं थी, इस पे चार्ज है कि नहीं है पहले। है। तो इस पे एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, यू इनिशियल कितनी है। हाफ सी नॉट। हाँ हाफ, वी सी हाफ नॉट। सी नॉट। वी या स्क्वायर नहीं, माइनस हाफ वी नॉट। हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट बोल सकती हो, या हाफ हाँ। हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर भी बोल सकती हो, है ना। हाँ सर। लेकिन ये वोल्टेज जो है ना, ये वाला, ये वोल्टेज बैटरी के बराबर नहीं है। वो तो इसमें इस कंडीशन में दिया हुआ है कि V बराबर V नॉट, है ना। हाँ सर। लेकिन इस पर जो एनर्जी है हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर है, और फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल में भी हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट ही है ना। हाँ सर। वी नॉट ही है। वो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर हुआ। सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो क्या इसकी स्टोर्ड एनर्जी में कोई चेंज आया, नहीं। कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया, यानी जितनी एनर्जी हाँ पहले सर। थी उतनी एनर्जी यहाँ है। तो क्या बैटरी ने कोई काम किया कि नहीं किया, नहीं किया। अरे यार क्या कर रही है तुम, बिल्कुल भूल रही हो। ये चार्ज किसने दिया है, बैटरी ने दिया है ना। हाँ सर। तो लेकिन सर बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फिर हाँ चार्ज नहीं है मतलब नहीं कैसे है नहीं होगा। है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं, फिर वही बात कर रही हो। ये प्लस से माइनस जुड़ा था ना, तो उसको प्लस करने के लिए बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, बैटरी ने क्या टू क्यू चार्ज दिया है टू ना। क्यू नॉट। नहीं दिया, बैटरी ने चार्ज कितना दिया, टू क्यू नॉट। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है ना ये। हाँ सर। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या है, वर्क डन बाई बैटरी कितना डेल्टा है, क्यू भी। डेल्टा क्यू इंटू वी नॉट। पूरा बोलो ना, हाँ सर। कितना लिखोगी। और क्यू नॉट किसके बराबर है, क्यू नॉट किसके बराबर है, सी नॉट वी नॉट के। क्यों भाई, हाँ सर। तो आप इसको लिखोगे टू क्यू नॉट जो चार्ज सप्लाई किया और पॉजिटिव वर्क कर रही है बैटरी, टू क्यू नॉट वी नॉट, ये वर्क डन बाई बैटरी है, ठीक है। हाँ सर। और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, सी नॉट वी नॉट। तो क्या ये टू सी नॉट वी नॉट है, हाँ सर है। टू सी नॉट वी नॉट, और ये वी नॉट पहले से है तो स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ सर। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है, टू सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। अब तुम जानती हो कि वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी
इज इक्वल टू होता है हीट प्रोड्यूस्ड, मैंने बताया था ना फॉर्मूला, हीट प्रोड्यूस प्लस हाँ सर। चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया था। हाँ सर। अब तुम ये बताओ जितना ui है उतना ही uf है ना, हाँ सर है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया? नहीं। नहीं आया, तो डेल्टा यू कितना है? 0। यहाँ क्या लिखेंगे आप? 0। तो इसका मतलब जितना वर्क डन किया बैटरी ने, क्या वो हीट हो गई? हाँ सर। क्या वो हीट में प्रोड्यूस हुआ? तो हाँ सर हो हीट इस जाएगा। केस में वर्क डन बाई बैटरी हुआ ना। हाँ सर। अब वर्क डन बाई बैटरी कितना है? तो 2c0 v0 स्क्वायर है ना। हाँ सर है। तो ये क्या हीट प्रोड्यूस्ड है? हाँ सर। तो क्या समझे इस केस से? इससे हम ये समझे कि अगर किसी कैपेसिटर की अपोजिट पोलरिटी को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाए, ठीक है, हाँ सर। और उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में उतना ही हो जितना बैटरी का है, तो उस समय बैटरी बैटरी पहले उस कैपेसिटर को न्यूट्रल करती है, फिर अपनी पोलरिटी पे लाती है। तो ऐसा करने में उसको कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ता है? 2q0। कितना करना पड़ता है? 2q0। जबकि जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी स्टोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। समझ गए? तो डेल्टा यू 0 हाँ होता है, और जो टोटल वर्क बैटरी करती है उसका एक वो पार्ट हीट हीट के में बराबर कंज्यूम होता होता है और एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। लेकिन इस केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी वर्क बैटरी करेगी वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट होगा। आया कि नहीं आया? है। आ गया सर। लेकिन लेकिन कब होगा? जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो हो, समझी, हाँ सर। वो किसके बराबर हो पहले से? इसके बैटरी के। बैटरी के। हाँ सर। लेकिन पोलरिटी किससे जुड़ी हो? अपोजिट हो, ठीक है। हाँ मैं सर। मैं एक सवाल कराता हूँ, ठीक है, हाँ सर। तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर साफ कर दूं ये। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है, ये देखो, मान लो कैपेसिटर है तुम्हारा 3 फैरेड का। कितने का? 3 फैरेड, 3। ठीक है। और ये की को हमने बाद में जोड़ा है ना। हाँ सर। ये क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है, हाँ सर। और ये बैटरी है। अब देखिए, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अपोजिट पोलरिटी जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ी है। अपोजिट जुड़ी है। मान लो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 3 फैरेड है, और इस पे जो चार्ज है Q, ऑलरेडी इसमें जो चार्ज दिया है Q0, वो आपका दिया है 15 कूलम। कितना दिया है? 15 कूलम, ठीक है। हेलो? 15। और इसका जो वोल्टेज दिया है वो 5 वोल्ट, वो दिया है 3 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है? हेलो, बैटरी 3 का वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया? 3 वोल्ट। अब तुम ये बताओ कि जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो कितना है? कैपेसिटर पे वोल्टेज बोलो। 15/3। अरे Q/C। हेलो? हाँ सर। 15। कितना आया? 5 वोल्ट आया। हेलो 5 वोल्ट, हाँ 5 वोल्ट आया। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ सर। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट आया। लेकिन हमारी बैटरी कितने की है?
हमारी बैटरी कितने की है? 3 वोल्ट की, तो बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है या 3 कैपेसिटर का? वोल्ट की है, कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है या बैटरी का? कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर, चार्ज किससे किस पे जाएगा? कैपेसिटर से बैटरी में। पक्का? हाँ सर। कब होता था? हाँ सर। वो कब होता था? जब प्लस से प्लस जुड़े हों। कब होता था? जब हाँ वो सर, प्लस से, प्लस से प्लस जुड़ा हो, हाँ, इसमें प्लस से प्लस नहीं जुड़ा है। तो देखना फाइनल नहीं सिचुएशन जुड़ा क्या है। होगी, थोड़ा ध्यान देना। फाइनल सिचुएशन तो सर अच्छी अब तरह। ऐसा दिया तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता होगा ना, हाँ, अब तो बता मतलब रहा ना, प्लस टू बिल्कुल। प्लस। हाँ, अपन नहीं, ये वाला क्या करेगा, ये सप्लाई करता रहेगा चार्ज, क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट है। इसके पास चार्ज तो क्या है, इसके पास चार्ज कितना है, इनफाइनाइट ये है। तो सोर्स है हमारा। ये बराबर चार्ज देता रहेगा देता रहेगा, पहले इसको न्यूट्रल करेगा, पहले जीरो पे ला देगा। किस पे ला देगा ये? हेलो, पहले किस पे ला देगा? 0 पे आएगा। जीरो पे ला देगा। उसके बाद और चार्ज देगा तो ये पॉजिटिव होने लगेगा, और ये क्या होने लगेगा? नेगेटिव। बात समझे? नेगेटिव। तो फाइनल सिचुएशन कैसी बनेगी मैं बताऊं तुम्हें। फाइनल सिचुएशन, तो फाइनल सिचुएशन ऐसी होगी, देखो, ये कैपेसिटर, हाँ सर। ये बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये कैपेसिटर, ये, ठीक है। हाँ सर। अब आवाज आ रही ना? हाँ, तो ये वाला प्लस है, सुनो, हाँ सर, आ रही और है। ये वाला माइनस है। इसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का, वो बैटरी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैटरी के बराबर हो जाएगा। वो तो होना ही है। और ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये प्लस से आ गया प्लस सर। जुड़ेगा, और इसके बाद चार्ज हाँ का सर। फर्दर, इसका फर्दर चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो क्यू फाइनल क्या हो जाएगा इस पर? क्यू फाइनल क्या हो जाएगा? सी, बोलो, सी सी नॉट वी नॉट बाई नॉट वी क्या हो नॉट। जाएगा? हाँ सर, सी नॉट बी नॉट। सी नॉट वी नॉट। और सी नॉट वी नॉट कितना 3 है? into 15। सी नॉट कितना है 3 बताओ? into 15। सी नॉट कितना दिया? 3। और वी नॉट कितना है? 3। 3। 9 हो जाएगा ना? हाँ सर। यानी फाइनल चार्ज क्या 9 कूलम हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो और शुरुआत में ये कितना था? 15 कूलम। यहाँ पर कितना होगा? माइनस का 9 कूलम। क्यों भाई? हाँ सर। यहाँ पर चार्ज क्या होगा? माइनस का 9 कूलम, और यहाँ का 9 कूलम। प्लस का 9 कूलम। बोलो, प्लस का 9 कूलम। सही है? हाँ सर। जबकि ये पहले प्लस का था। पहले कितना का था ये? प्लस का था ये। प्लस का इस था। साइड अब ये कितने का हो गया? यहाँ पर माइनस। माइनस का हो गया। समझ में आया? और पहले ये हाँ कितने का सर। था? पहले ये कितने का था? माइनस का 15 कूलम था ना? हाँ सर। ध्यान रखना, हमें ये देखना होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसी को चार्ज दे रहा है। तो ध्यान से सुनना, चार्ज कितना दिया बैटरी ने? बैटरी ने चार्ज कितना दिया? फाइनल चार्ज कितना हो गया? प्लस प्लेट, हमेशा पॉजिटिव प्लेट को देखो। तो पॉजिटिव प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना हो गया? 9 कूलम। 9 कूलम। और पहले से कितना था? 15। माइनस का 15। माइनस माइनस, जो हाँ, प्लेट माइनस का पॉजिटिव 15। हुई है उस, वो पहले कैसी थी? नेगेटिव थी ना? हाँ सर, नेगेटिव तो थी। -15। तो यानी बैटरी ने जो चार्ज दिया है, क्या वो 24 कूलम दिया है? हाँ सर, दिया है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बैटरी ने चार्ज कितना दिया? 24 कूलम। 24 कूलम। पहले कितनी एनर्जी थी कैपेसिटर पे? इनिशियल एनर्जी बोलो। हाफ हाफ सी नॉट वी नॉट।
सी half C naught V naught square. हाँ पूरा बोला करो, सी नॉट वी नॉट नहीं, वी नॉट तो बाद में लगाया, पहले कितना था, पहले तो 5 वोल्ट था ना ये, हाँ सर. पहले कितना वोल्टेज था इसको लगाने से पहले, पहले चार्ज 15 था ना, ये 3 था ना, तो उस पर वोल्टेज कितना था, 3 था ना, बाद में पहले वोल्टेज कितना था बताओ, 5 था ना, बाद में हाँ हुआ सर 3 था. तो, बाद में हुआ 3 तो, है ना, जब बैटरी ने चार्ज दे दिया, क्यों भाई, हाँ सर. नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है सर. हाँ तो हाफ सी नॉट की हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर होता ना, हाफ सी का मतलब 3 है ना, हाँ सर. और वी कितना है 5 का 5. स्क्वायर करना पड़ेगा ना, सी हाँ वी सर. स्क्वायर होता है ना, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा 37.5, कितना आ जाएगा, सॉल्व तो कर लोगे ना, मल्टीप्लाई 37.5. जूल, 37.5 जूल, ये इनिशियल एनर्जी है, क्यों भाई, हाँ सर. और फाइनल एनर्जी बोलो, फाइनल एनर्जी हाफ हाँ. सी का मतलब C 3 naught. और वी का मतलब 3 का स्क्वायर, क्यों भाई फाइनल तो 3 हो गया ना, सर. तो 3 का स्क्वायर यानी 9, आया समझ में, आ गया सर. यानी ये आ गया 13.5 जूल, आ गया ये। हाँ सर. अब बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया है, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाई बैटरी बोलो, कितना चार्ज दिया उसने, कितना चार्ज तो सप्लाई delta किया 24, 5 into V. कितना हाँ चार्ज सर. सप्लाई किया 24, और वोल्टेज कितना है बैटरी का 3 वोल्ट है ना, 3 3 वोल्ट बैटरी का है वोल्टेज सर. कितना है 3 वोल्ट, तो कितना आ गया 72 जूल, कितना आ गया 72 जूल. 72 जूल। अच्छा चेंज कितना हुआ एनर्जी में, चेंज कितना हुआ एनर्जी में, डेल्टा यू कितना हुआ, चेंज इन एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ सर. तो बाद में हो गई 13.5 और पहले कितनी थी 37.5, 37.5. तो क्या 24 जूल हुआ माइनस का, हाँ सर. नहीं आया समझ में, आ गया सर. तो ये माइनस क्यों, क्योंकि फाइनल वाली कम है इनिशियल ज्यादा है। अब पूछे हाँ. हीट, अब पूछे हीट प्रोड्यूस कितनी है, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू हीट प्लस डेल्टा यू, बताया ना, हाँ सर. प्लस डेल्टा यू, क्लियर हुआ। हाँ सर हो गया. तो अब तुम्हें वर्क डन बाई बैटरी तो मालूम ही है 72 जूल, हाँ सर. और डेल्टा यू मालूम है आपको -24, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एच कितना आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का रखोगे ना, यहाँ क्या रखोगे माइनस का हाँ 20 सर. और ये प्लस का 70, तो कितना आ जाएगा ये 96, कितना आ जाएगा ये, 96. नहीं समझ में आया, आ गया आगे सर. आगे अच्छी तरह, तो ध्यान रखना हाँ इस सर. कंसेप्ट को कि अगर बैटरी के अपोजिट टर्मिनल को जोड़ोगे आप कैपेसिटर से, तो फाइनली कैपेसिटर को किस पर आना पड़ेगा, बैटरी के बराबर, हाँ सर. बैटरी की साइड. और वर्क डन बाई बैटरी हमेशा पॉजिटिव होगा इस केस में, क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव होगा. लिख लो इस लाइन को, इफ द अपोजिट पोलरिटी ऑफ सोर्स एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ठीक है, हाँ सर. then final potential difference of the capacitor will be same as source with same polarity, समझ गए, यानी बाद में वो बैटरी के पोलरिटी के साथ ही प्लस से प्लस हो जाएगा, देख रहा है ना, हाँ सर. and work done by battery in this case will always positive, and work done by battery in this case always positive. The potential energy stored on the change in potential energy, लिखो the change in potential energy on capacitor
मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है और इनिशियल ज्यादा है, समझ गए? हाँ सर। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। क्या लिखा? चेंज इन पोटेंशियल एंड मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। हाँ और सर। जीरो, जो सबसे पहले वाला केस बताया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया जीरो था? था। जीरो। तो ये सारे केस पॉसिबल, समझ गए आप? हाँ सर समझ गए। अच्छी तरह समझ में आ गया ये? हाँ सर। अब लिखो चार्जिंग। अब ये मैंने बताया चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बाय सेल, ये बताया ना मैंने। हाँ सर। इसमें चार्ज इनफाइनाइट रहता है, यानी सोर्स चाहे तो चाहे जितना चार्ज दे सकता है। सोर्स चाहे तो चाहे जितना चार्ज दे सकता है। हाँ। अब लिखो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, सुनो। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, है ना? हाँ सर। हाँ। दूसरा लिखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय चार्जिंग बाय कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर कैपेसिटर चार्जिंग, ठीक है। हाँ यानी एक कैपेसिटर अनचार्ज है, साफ कर दें पूरा। हाँ सर। एक कैपेसिटर अनचार्ज है और दूसरा कैपेसिटर चार्ज है, और हम पहले कैपेसिटर को जो कि अनचार्ज है उसको चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर से, समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपने मान लो ये बनाया, अब बैटरी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। अब बैटरी नहीं है, अब क्या है? चारों। हाँ सर। अब दोनों क्या है? कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर है। इसमें एक चार्ज है, इसमें क्या है? चार्ज एक है। चार्ज। मान लो एक कैपेसिटर था C1, इस पर पहले से चार्ज था कुछ, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था। कितना था? वी। V1 था। और इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं था, यानी इसका पोटेंशियल कितना था? जीरो। नहीं समझ में आया? हेलो? सर एक बार repeat कर सकते देखो, एक कैपेसिटर है C1 जो पहले से चार्ज है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 दिया है, समझ में हैं? आया? हाँ सर। और दूसरा C2 है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, समझ में आया? हाँ सर आगे। और इसमें ध्यान रखना, इस पर जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी इसमें कहीं से और चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज है वही शेयर होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। इसमें क्या है? टोटल चार्ज जो होता है Q टोटल, वो कांस्टेंट होता है, जबकि बैटरी में ऐसा नहीं था। बैटरी में, समझ में आया? हाँ Q सर। टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। Q टोटल क्या है? कांस्टेंट। इंस्टेंट। और बताओ Q है कितना? केवल इस पर है ना चार्ज, हाँ सर। तो वो चार्ज कितना है बताओ इसमें? C1 V1 है क्या? C1V1। नहीं समझ में आया? आ गया सर। और अब सुनो, जब तुमने इसको स्विच को क्लोज किया, ये क्लोज कर दिया, ठीक है ना? हाँ सर। अब क्या होगा? ये हाई पोटेंशियल पे, ये जीरो पर है, तो ये चार्ज अपना देगा इसको, तो इसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट होगा ना? हाँ सर हो जाएगा। और इस पे चार्ज घटना स्टार्ट होगा, इस पे घटेगा ना चार्ज? हाँ सर घट जाएगा। जब इस पे चार्ज घटेगा तो इसका पोटेंशियल भी घटेगा। हेलो? जब इस पे हाँ चार्ज सर घटे जब चार्ज इस पे घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा ना इसका? घट जाएगा घट जाएगा। पोटेंशियल भी घटेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ सर बढ़ेगा। तो देखो फाइनल सिचुएशन देखो, मान लेते हैं ये कैपेसिटर की फाइनल सिचुएशन है, और कब तक चार्ज देगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल, इक्वल नहीं हो जाए। हाँ बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा। ये दोनों ही कैपेसिटर हैं, फाइनल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर।
और ध्यान रखो फाइनल में दोनों की पोलरिटी एक जैसी होगी, प्लस, इसने प्लस चार्ज ही तो दिया हुआ है ऐसे, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, हाँ सर। मान लो इसने एक्स चार्ज दे दिया ऐसे, पहले बिल्कुल नहीं था इस पे, अब कितना चार्ज आ गया एक्स, तो इस पर क्या X. बचेगा, इस पर कितना बचेगा बताओ, इस पर कितना होगा चार्ज, पहले चार्ज था Q1, पहले क्या था चार्ज, Q minus मतलब X. Q था, सॉरी Q था, अब ये क्या Q माइनस एक्स होगा, Minus X. नहीं समझ में आ रहा। आ रहा है सर। अब तुम ये बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या है C1, हाँ सर। और इसकी क्या है C2. C2, और दोनों पर क्या है, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाले पर, क्या वही नीचे वाले पर भी है, हाँ सर होगा। तभी चार्ज जाना बंद हो जाएगा, सही है ना। हाँ सर। तो ये बताओ वो V क्या होगा, ऊपर वाले पर V क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है Q माइनस एक्स, कि नहीं है, हाँ सर है। अपॉन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है ऊपर वाले की, ऊपर वाले की कैपेसिटेंस कितनी थी, C1 थी ना, C1. और नीचे वाले पर चार्ज कितना आया है X, क्यों भाई, हाँ सर। और नीचे वाले की कैपेसिटेंस कितनी है, C2. अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या X बराबर ये आएगा, X बराबर क्या ये आएगा QC2 हाँ सर आएगा। अपॉन C1 प्लस C2, हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो ये चार्ज ट्रांसफर आ जाएगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्यों भाई आ जाएगा ना। हाँ सर। अब फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, आप एक्स की वैल्यू को रख दो सर, एक्स की वैल्यू को यहां रख दो, तो क्या C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q अपॉन C1 प्लस C2, नहीं समझ में आया, आ आया गया कि नहीं। सर। तो ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल है, क्या है ये, क्या है फाइनल ये, पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड है, सही है। हाँ सर। अब ये बताओ टोटल अमाउंट चार्ज और ये अपॉन टोटल कैपेसिटेंस है, क्या है ये, टोटल चार्ज टोटल अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल आ गया है, क्या है ये फाइनल, पोटेंशियल। नहीं आया समझ में, आ गया सर। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, लिखो C1 बराबर 3 फैरेड, लिख लिया, हाँ सर। और C2 बराबर 5 फैरेड, C1 है कितना 3 फेरेड 3 और फैरेड, और C2 कितना है 5 फेरेड। 5 फैरेड। अब अच्छा सवाल दे रहा हूं, ध्यान रखना, बस अंतर क्या किया है कि इस पर पहले से चार्ज है, यानी इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, शुरुआत की सिचुएशन है, यहाँ पर जो चार्ज है शुरू से ही वो है Q2 बराबर 15 कूलम, कितना है इस पे चार्ज, 15 कूलम। और इस पर जो चार्ज है इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर जो चार्ज है Q1 वो 5 कूलम है, ठीक है। हाँ सर। फाइनल सिचुएशन बताओ, मतलब फाइनल ये बताना है कितना चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, ये बताओ पहले चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, इसमें हायर और लोअर नहीं देखे जाते, इसमें हाँ क्या नहीं सर। देखे जाते, हायर और लोअर। ध्यान रखना जब प्लस से माइनस कनेक्टेड होता है तब हायर और लोअर नहीं देखे जाते, तब ये देखा जाता है कि हायर पॉजिटिव किसका है, तो आप देखो नीचे वाली प्लेट जो है, नीचे वाला जो कैपेसिटर है दिख रहा, हाँ सर। उस पे 15 कूलम का चार्ज है, और 15 कूलम है। ऊपर 5 वाले पे कूलम है। 5 है, तो नीचे वाला अपना चार्ज देगा, क्या करेगा नीचे वाला, देगा अपना चार्ज। तो मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या बताया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल, कैपेसिटेंस। तो देखो ये वाला 15 था, ये वाला कितना है -5 है ना, -5। थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह, टोटल मिला के इसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा टोटल,
कांस्टेंट रहेगा। ये किसी को देगा थोड़ी, ये तो अलग है ना प्लेट। हाँ सर। तो बताओ टोटल चार्ज कितना है, 15 माइनस 5, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर कितना आएगा, 10। 10। सही है। और कौन देगा इसको चार्ज, ये देगा अपना चार्ज। तो क्यू टोटल कितना है, 10। क्यू टोटल कितना है, 10 है। और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, बोलो। 5 प्लस 3 8, 5 + 3। 8। ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा भाई। हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर आ गया। अब कौन किसको दे रहा है चार्ज, ये ज्यादा वाला दे रहा है ना चार्ज। ज्यादा वाला दे रहा है। तो एक्स कितना आएगा बताओ, एक्स कितना आएगा, क्यू का मतलब कितना है। 10 अरे है। यार ये बताओ,